नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं IMA न्यूज टुडे। दोस्तों, रैपिडो बाइक टैक्सी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एक नई अपडेट है। छोटी सी अपडेट है लेकिन नई अपडेट है। और इस जो है नेक्स्ट तारीख कब है, नेक्स्ट डेट कब है सुप्रीम कोर्ट की, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करना है। ये वीडियो हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ में मिक्स होगा क्योंकि बहुत छोटी सी अपडेट है। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಡೇಟ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ओके ना। सो अभी सीधे जो है कोर्ट की अपडेट की तरफ चलते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैं जैसे बताया था कि जो है ಹಿಯರಿಂಗ್ में कुछ हुआ नहीं था। ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, लेटर दिए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो हियरिंग हुई थी उस दिन का ये आइटम नंबर 8 11 अगस्त को जो हियरिंग हुई थी, ये पूरा आपके सामने कोर्ट का ऑर्डर मैं सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग, जैसे मैंने बताया था एग्जैक्ट वही ऑर्डर आया है। बहुत सारे चैनल में अलग अलग अपडेट्स आए। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಕತೆನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ। ಏನು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಯಿತು 11ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 2026ಗೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ। ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು। ಇನ್ ದ ವೀವ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲರ್ನ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೆಟಿಷನರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಡ್। ಅಂದರೆ यहाँ क्या है बोले तो ये लेटर आया इसलिए ये केस को जो है नेक्स्ट तारीख दिया जा रहा है और ये मैटर को ಅಡ್ಜರ್ನ್ किया जा रहा है। ಈ ಅವತ್ತು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಲೆಟ್ರ್ ಬಂತು ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಲೆಟ್ರ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 ವೀಕ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ 4 ವೀಕ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ। ಒಂದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। तो आफ्टर 4 वीक्स लिस्ट करो बोल के जज साहब ने उस दिन बोला था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था। अब मैं आपको जो है दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है सुप्रीम कोर्ट में। आपको मैं यहाँ पे केस का डिटेल्स दिखा के डिस्प्ले करता हूँ, आप देखिए। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನಿತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಿತ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಿತ್ ಎವಿडेंस ही मैं देने का मेरा ये रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे डायरी नंबर देखिए, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಯಿತು। ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ಇತ್ತು। ಆಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 4 ವೀಕ್ಸ್, ओके। 11 सितंबर 2026 को ये नेक्स्ट हियरिंग हमारा होने वाला है। उस दिन ये कंप्यूटराइज जनरेटेड डेट है, एक दिन इधर आगे पीछे हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। वो हमारे यूट्यूब चैनल IMA न्यूज़ टुडे में हिंदी में होगा अपडेट। ಹಿಂದಿಲಿ IMA ನ್ಯೂಸ್ ಟುಡೇಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಡೇಟ್ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇದು, ಓಕೆನಾ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಡೇಟ್ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿಲಾದರೆ IMA ನ್ಯೂಸ್ ಟುಡೇಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಂದ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 11ಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, आपको मैं ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೈಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ। ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಇದೊಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, तो हिंदी में मैं आपको बात करूँगा। बैंगलोर में दोस्तों 1.4 करोड़ की पॉपुलेशन है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, 1.4 करोड़ की पॉपुलेशन है। डेली जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं 1.1 करोड़ है, और ऑटो यूज़ करने वाले 30 to 35 लाख है। अब ऑटो वाले बोलते हैं कि हमारा रोजी रोटी छीन लिया ये लोग आकर के, बाइक टैक्सी वाले करके बोलते हैं। तो उनके लिए ये जवाब है, मेरा रिसर्च रिपोर्ट है, 30 to 35 लाख ऑटो पैसेंजर्स डेली यूज़ करते हैं। मंथली एवरेज इनकम, चाहे वो ऑटो वाला हो या बाइक टैक्सी वाला हो या
आपका उबर, ओला या रैपिडो या आपका ज़ोमैटो, आपका ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टा, स्विगी, सबका एवरेज मंथली इनकम जो है 18,000 टू 42,000, कुछ का 50 भी जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं रियलिस्टिकली एवरेज बता रहा हूँ। तो अब रोज जो है कितने ऑटो रिक्शा जो है अभी फिलहाल बैंगलोर में है वो बात करते हैं। 1.5 टू 2 लाख ऑटो रिक्शा जो है बैंगलोर में है। कितने? 1.5 टू 2 लाख, 2 लाख पकड़ के चलिए, 2 लाख ऑटो हैं और इसको यूज करने वाले 15 से 20 लाख राइडर्स, यानी कि ट्रिप्स। 15 लाख टू 20 लाख पर डे ऑटो वालों को बिजनेस मिलता है। और पैसेंजर कितने? 30 टू 35 लाख पैसेंजर। राइड्स अलग है, पैसेंजर, क्योंकि ऑटो में 2 भी बैठ सकते, 3 भी बैठ सकते, तो वो हिसाब से 30 टू 35 लाख पैसेंजर्स ऑटो यूज करते हैं बैंगलोर में, जिसका रेशियो है पॉपुलेशन के हिसाब से 21 टू 25%। पूरा वीडियो देखिएगा। 21 टू 25% जो है ऑटो रिक्शा का जो है डिमांड है बेंगलुरु में, और ऑटो रिक्शा यूज करने वाले हैं, पैसेंजर्स यूज करते हैं। अब बाइक टैक्सी में कितने लोग हैं, कितने लोग राइडर्स हैं, यानी कि कैप्टन्स हैं? तो 50,000 टू 80,000 एक्टिव कैप्टन्स है बेंगलुरु में। तो ऑटो कितने हैं? 1.5 टू 2 लाख। तो क्या प्रॉब्लम है भाई? सिर्फ 50,000 ही तो है, 80,000 तो वो हाईएस्ट बता रहा हूं मैं। 4 टू 6 लाख राइड्स लेते हैं बेंगलुरु के अंदर पैसेंजर्स, 4 टू 6 लाख। तो 4 टू 6 लाख सिंगल राइड ही होता है, वहां पे मल्टीपल पैसेंजर तो आता नहीं है। अगर 2 से ज्यादा लोग हैं तो ऑटो में ही जाएंगे। उनका कितना है पॉपुलेशन के हिसाब से? सिर्फ 3 से 4% ही बाइक टैक्सी वालों का पैसेंजर्स का मार्केट वहां पे कैप्चर हुआ है, यानी कि 21 टू 25% ऑटो यूज करने वाले हैं बेंगलोर में, 3 टू 4% बाइक टैक्सी। और ये ऑटो वाले रोते हैं। क्यों रोना भाई? मीटर लगाओ, आते हैं पब्लिक, क्यों नहीं आते? ये भी रेशियो 21 से 25 क्या 30-40% आ जाएगा। लेकिन 3-4% लोगों के लिए आप इतना क्यों हल्ला मचा रहे? सिर्फ 3 टू 4% कम्यूटर्स, पैसेंजर्स जो है बाइक टैक्सी यूज करते हैं बेंगलुरु के पॉपुलेशन से, लेकिन ऑटो वालों का संख्या जो है 21 टू 25%। अभी कैब्स की बात करते हैं, कार्स का जो कैब्स का रहता है 1 टू 1.2 लाख जो है कैब्स अवेलेबल हैं बेंगलुरु में, ठीक है। 3 टू 5 लाख राइड्स चलते हैं, ट्रिप्स चलते हैं। 4.5 टू 8 लाख पैसेंजर्स यूज करते हैं कैब्स को। ये भी 3 टू 6%, यहां पे भी ऑटो वालों को रोने की जरूरत नहीं है, 3 टू 6% ओनली। अब बीएमटीसी परसेंट है, इनका रेशियो ज्यादा है। ऑटो वालों को स्ट्राइक करना है तो बीएमटीसी बस बंद करो बोल के बोलो, और क्या बोलूं मैं, है ना। 7,000 बसेस हैं और 45 टू 48 लाख पैसेंजर्स डेली ट्रैवल करते हैं बीएमटीसी से। इसका रेशियो है 32 टू 34%। अब मैक्सिमम मार्केट 55-60% मार्केट किसने कैप्चर किया? बीएमटीसी और ऑटो रिक्शा ने। और नम्मा मेट्रो जो है 9 लाख पैसेंजर्स यूज करते हैं पर डे, 9 टू 10 लाख। ओनली 6 टू 7%। यहां पे भी ऑटो वालों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनका रेशियो 21 टू 25%। उनका कंपटीशन बीएमटीसी बस है, बाइक टैक्सी नहीं है। बाइक टैक्सी का सिर्फ 3 टू 4% है। अब ऑटो रिक्शा का क्या है, फेयर कितना है, ये देखते हैं। देखो दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोगों के पास ये कैलकुलेशन होना चाहिए। जब भी ऑटो रिक्शा वाले परेशान करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं या हंगामा करते हैं, उनका ये सच जानना बहुत ज़रूरी है। 30 रुपीज़ उनका नॉर्मल रहता है मिनिमम फेयर। कोई 30 रुपये में तो ऑटो वाला आता नहीं है, वो अलग बात है। अगर ऐप से बुक करते हैं मिनिमम फेयर 40 रुपीज़ टू 55, क्योंकि ऐप से कमीशन भी रहता है। पर किलोमीटर ऑटो फेयर जो है 15 रुपीज़ टू 20 रुपीज़ है, कोई भी उतने में कम में नहीं आता। 4 टू 6 किलोमीटर के लिए ऑटो को मैक्सिमम पैसेंजर्स जो है बेंगलुरु में यूज करते हैं। इनका मिनिमम फेयर 80 रुपीज़, 130 रुपीज़। कितने लोग भाई 130 रुपीज़ में गए हैं ऑटो में, बताइए। जहां तक मुझे मालूम है 150 रुपये से कम कभी भी ऑटो मुझे तो नहीं मिला है, कभी भी मुझे तो नहीं मिला है ऑटो। लेकिन उनका एक्चुअली एज पर लॉ 80 टू 130 रुपीज़ मिनिमम होता है। 40 टू 65, अगर 2 से 3 लोग जाते हैं ऑटो में तो 40 टू 60 रुपीज़ शेयर पड़ता है एक आदमी का। सिंगल पर्सन गया तो 80 रुपीज़ तो 130 रुपीज़। बाइक टैक्सी में मिनिमम 20 टू 25 रुपीज़ होता है।
₹8 to ₹12 पर किलोमीटर होता है चार्जेस। 3 to 5 किलोमीटर रेडियस के लिए यूज करते हैं पैसेंजर्स, कभी कभी 10 किलोमीटर ऑटो भी यूज करते हैं, बाइक टैक्सी भी यूज करते हैं, ये एवरेज बता रहा हूं मैं। तो 45 to 75 रुपीज ये क्लियर है, ये फैक्ट है। 45 रुपीज से 75 रुपीज पर पर्सन का एक्सपेंस आता है, तो सिंगल पर्सन के लिए ये बेस्ट है बाइक टैक्सी। अब बात करते हैं कैब की। अगर आप कैब ऑटो भी नहीं लेंगे, बाइक टैक्सी भी नहीं लेंगे, तो 100 रुपये लगता है आपका, 100 से 120 रुपये लगता है मिनिमम फेयर। 18 रुपये से 30 रुपये पर किलोमीटर होता है, डिपेंडिंग नाइट में यूज कर रहे हैं या डे में यूज कर रहे हैं। 10 से 15 किलोमीटर मिनिमम है तो मैक्सिमम बेंगलुरु में कैब यूज करते हैं। 250 to 450 मिनिमम कॉस्ट होता है। 120 to 225 शेयर्ड होता है, यानी कि कैब में तो 4 लोग भी जा सकते हैं, वो हिसाब से कम हो जाता है एवरेज कॉस्ट पर पैसेंजर। लेकिन सिंगल पर्सन यूज करता है, मिनिमम कॉस्ट 250 to 450 होता है। अगर एयरपोर्ट के लिए कैब बुक करते हैं तो 950 to 1400 मिनिमम स्टार्टिंग चार्जेस होते हैं। 18 to 24 रुपीज पर किलोमीटर प्लस टॉल रहता है। 35 to 45 किलोमीटर मिनिमम ये यूज करते हैं टैक्सीज, कैब्स, एयरपोर्ट कैब्स। 1000 to 1600 रुपीज मिनिमम फेयर जाता है पैसेंजर्स को। 350 to 550 अगर ग्रुप्स में जाते हैं, 4 लोग मिलके जाते हैं। ओवरऑल सिंगल पर्सन ही होता है, एक पर्सन को ही पूरा एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ता है। 1000 to 1600 रुपीज एक्सपेंसेस मिनिमम आता है। अब आते हैं, बात करते हैं, अब इनकम की बात करते हैं, ठीक है। अब ब्लिंकिट, जेप्टो या इंस्टामार्ट की जो है 6 to 6 लाख ऑर्डर्स उनको मिलते हैं। 25 to 35% शेयर उनका है। कौन सा? जो ग्रोसरीज डिलीवरी करते हैं, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट जैसे एप्स। फूड डिलीवरी ऐप जैसे जोमैटो, स्विगी जो है पर डे 7 to 9 लाख का ऑर्डर है, और इसमें 50 to 70,000 एग्जीक्यूटिव्स हैं। और ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट में 40 to 60 तक। तो इनका रेशियो है फूड डिलीवरी का 35 to 40% मार्केट रेशियो है। बाइक टैक्सीज का 4 to 6 लाख राइड्स लेते हैं पर डे। 2.5, ये इंडिया का नहीं चाहिए, 50,000 to 80,000 कैप्टन्स अभी बैंगलोर में हैं। ये तो मैं पहले भी बताया। 15 to 20% रेशियो है इनका, ओनली अगर ये कंसिडर करेंगे। अब इसमें ऑटो का कितना शेयर है? 50 to 60%। कैसे? ऑटो रिक्शा का 15 to 20 लाख राइड्स पर डे होते हैं, और 1.5 to 2 लाख ड्राइवर्स हैं बेंगलुरु के अंदर। 50 to 60% मार्केट शेयर किसका है? अभी भी ऑटो वालों को रोने की जरूरत नहीं है। अगर हम ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, जेप्टो, स्विगी, उबर, ओला, रैपिडो सबको अगर कंसिडर करेंगे, मिक्स सबको मिलाकर भी देखेंगे, तब भी ऑटो वालों का शेयर हाई है 50 to 60%। तो ऑटो रिक्शा कम्यूटर 17.5 लाख एवरेज है। फूड डिलीवरी 8 लाख है। ई कॉमर्स यानी कि ग्रोसरी डिलीवरी 7 लाख पर डे है एवरेज। बाइक टैक्सी 5 लाख एवरेज है। कैब्स 4 लाख एवरेज है। ग्रॉस रेवेन्यू कितना है? जेप्टो, जोमैटो, ब्लिंकिट वालों का एवरेज 1000 to 1800 रुपीज पर डे है। बाइक टैक्सी कैप्टन्स का 900 to 1500 रुपीज पर डे उनका इनकम होता है। पूरा वीडियो देखिए। ऑटो ड्राइवर्स का 1800 to 2800। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें कंसिडर करना चाहिए। ऑटो ड्राइवर्स ज्यादा कमाते हैं, करेक्ट है। 1800 to 2800 उनका एवरेज इनकम है। डेली एक्सपेंसेस जो ब्लिंकिट या जोमैटो जैसे एप्स यूज करते हैं, फूड डिलीवरी या ग्रोसरी डिलीवरी, 250 to 400 उनका फ्यूल एक्सपेंस या ईवी चार्जिंग एक्सपेंसेस जाता है। बाइक टैक्सी के लिए 200 to 350 रुपीज एक्सपेंसेस जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है? ऑटो ड्राइवर्स का फ्यूल का जो है 400 रुपीज जो है जाता है एक्सपेंसेस, साथ में उनका रेंट में भी बहुत सारे ऑटोस चलाते हैं, इसलिए ये भी कंसिडर करना है, ईएमआई भी कंसिडर करना है। तो 400, तो 800 रुपीज एवरेज पर डे उनका एक्सपेंसेस आता है। तो ये भी है, वो भी कंसिडर करना है। तो प्लेटफॉर्म को कमीशन देना पड़ता है, किसको? जोमैटो और ब्लिंकिट को। बाइक टैक्सी को एक 10% तक कमीशन देना होता है, ऑटो को अप टू 20% कमीशन देना होता है। नेट टेक होम कितना पैसा घर लेके जाते हैं? जेप्टो, जोमैटो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये तमाम लोग जो है एवरेज 700 रुपीज पर टू 1200 आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस 700 to 1200 रुपीज घर लेके जाते हैं। बाइक टैक्सी वाले 650 रुपीज to 1100 रुपीज पर डे घर लेके जाते हैं पैसा। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स 1000 रुपीज to 1700 रुपीज पर डे घर लेके जाते हैं अपना पैसा।
तो इनका मंथली इनकम कितना हुआ? जेप्टो, ब्लिंकिट जैसे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, स्विगी हो, जेप्टो हो, जोमैटो हो, आपका इंस्टामार्ट हो, स्विगी हो, इनका 18,000 to 28,000 है। वही ओला, उबर, रैपिडो का 16,000 to 24,000 पर मंथ इनकम है। वही ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स मिनिमम 25,000 to 42,000 डिपेंडिंग वो लोग कितना काम करते हैं, ये काम यहाँ पे दिया गया है, कितने घंटे काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इससे ज़्यादा अगर आप भी कमा सकते हैं वो डिपेंड करता है। लेकिन ऑटो रिक्शा ड्राइवर जितने भी लोग हैं, मैंने जो मेरी लाइफ में देखा है, पिछले कुछ 15-20 सालों से मैं देखा हूँ, कभी भी ये लोग मीटर से नहीं आए मेरे लिए। तो ओवरऑल दोस्तों यही था अपडेट की, मतलब अभी मेरा सवाल ये है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है मिसिंग है, तो हम किससे सवाल करेंगे और हमारे लिए येलो बोर्ड का कानून कौन लेकर आएगा? हमारे पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ही नहीं है, वो मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे? अब जेप्टो, स्विगी, इसका मैं क्यों कंपैरिजन लेके आऊंगी, उसके पीछे रीजन है। ट्रांसपोर्ट कमर्शियल मतलब क्या है? व्हाइट बोर्ड मतलब प्राइवेट है, येलो बोर्ड मतलब कमर्शियल है। जब रैपिडो जैसे ऐप्स को बैन किया जाता है बाइक टैक्सीज चलाने के लिए, व्हाइट बोर्ड में अलाउ नहीं है, तो स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट इनको कैसे अलाउ कर सकते हैं? वो भी तो कमर्शियल कैरेज में आते हैं। यहाँ पे सरकार को नहीं दिखता है क्या? सिर्फ बाइक टैक्सी ही दिख रहा है क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले जो है परेशान कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जब हमारे उनका पोर्टफोलियो अलोकेट होगा तब तक हमें खामोश बैठना है। अब पिछली जो हियरिंग थी 11 अगस्त 2026 को, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिसिंग है। अभी पोर्टफोलियो मिला ही नहीं है। कौन है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कर्नाटका का, हमको पता नहीं है। तो जब तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो अलोकेट नहीं होगा, कौन है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो हमारे बाइक टैक्सी वालों का सवाल का जवाब कहां से मिलेगा? कहीं से नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में केस अगर चल भी रहा है तो वहां पे जवाब कौन दाखिला करेगा? ये भी तो सीधी बात है। तो ओवरऑल बोलने का मकसद ये है, जब तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं आता हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि लापता है, राइट? तो एनीवेज पूरा आज का ये ओवरऑल सिनेरियो ये है कि हमारा जो केस है बाइक टैक्सी को लेकर के, वो सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट प्रोबेबली 11 सितंबर 2026, अभी तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में ऑफिशियली 11 सितंबर 2026 डेट दिया गया है, लेकिन वो कंप्यूटराइज डेट है। कभी कभी ये डेट आगे पीछे हो जाता है। ऐसा कुछ होगा तो हम इस चैनल में आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों आप कमेंट्स में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि वीडियो शेयर करने से आपकी ताकत बढ़ेगी, आप लोगों की आवाज बढ़ेगी। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा बोरिंग था, बहुत सारा मैथमेटिक्स था, कैलकुलेशंस थे, डाटा था, लेकिन ऐसे डाटा से हमें लड़ना है। अब ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी हंगामा कर रहे हैं, उनका तो 35 to 50 लाख पैसेंजर्स है। 55-60% शेयर उनका है। हमारा बाइक टैक्सी वालों का 3-4% के लिए इतना हंगामा कर रहे हैं ये लोग। इनको कहां से नुकसान हो रहा है? तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? कब आएंगे? कब डीके शिव कुमार जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो किसी को देंगे, जिम्मेदारी देंगे और हम उससे बात करेंगे और ये येलो बोर्ड टैक्सी का जो है बाइक टैक्स एक नया कानून जो है आएगा, ये हमें देखना है। फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूं, दुआ में याद रखिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल IMNews टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका फरहान रशीद, थैंक यू।